دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اگر کسی ملک کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک بہت طاقتور ہے۔ وہ کسی بھی دوسرے ملک پر چند منٹوں میں حملہ کر سکتا ہے جو اس سے ہزاروں میل دور ہو۔ ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جنگی طیارے کیسے اس مختصر سے دنیا بھر کے سمندروں میں گشت کرتے موبائل ایئر بیس سے ٹیک آف کر جاتے ہیں؟ اور اس کے چھوٹے سے رن وے پر بڑے بڑے طیارے آخر کیسے لینڈ کر جاتے ہیں؟ یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ایئر کرافٹ کیریئر ایک ایسا بحری جہاز یا نیول ویسل ہوتا ہے جس سے ایئر کرافٹس ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں اور اس پر لینڈ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر مختصراً بتائیں تو یہ ایک چلتا پھرتا ایئر فیلڈ ہوتا ہے جو سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے، جسے آپ موبائل ایئر بیس یعنی چلتا پھرتا ایئر بیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بحری جہاز سے فضائی آپریشن کی ابتدائی تاریخ کا حوالہ 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ملتا ہے، جب برٹش رائل نیوی اپنے شپس سے پتنگوں کے ساتھ پروپیگنڈا پمفلٹس باندھ کر فرانس کے علاقوں میں گرایا کرتی تھی۔ اس کے بعد 1849 میں آسٹرین نیوی نے ہاٹ ایئر بیلونز کے ساتھ بم باندھ کر اٹلی کے شہر وینس پر گرانے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ تجربہ ناکام رہا کیونکہ مخالف سمت چلنے والی ہوا کی وجہ سے بیلونز واپس آ کر ان کے اپنے ہی شپس پر جا گرے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کا صحیح معنوں میں آغاز 20ویں صدی میں ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد ہوا، جب ایئر کرافٹس کو نیوی کے استعمال کے لیے تجربات کیے جا رہے تھے۔ 1910 میں ایک امریکن پائلٹ ایلی نے پہلی مرتبہ لائٹ کروزر USS برمنگھم پر تیار کیے گئے ڈیک یعنی رن وے سے طیارے کو اڑایا، لیکن ایلی نے اس وقت لینڈنگ خشکی پر ہی کی تھی۔ اس کے بعد 1911 میں ایلی نے ہی ایک اور بیٹل شپ پر اپنے ایئر کرافٹ کو پہلی بار لینڈ بھی کروا لیا اور واپس وہیں سے ٹیک آف بھی کیا۔ ان کامیاب تجربات کے بعد پھر مختلف ممالک کی بحری افواج نے آنے والے دور میں ایئر کرافٹ کیریئر کی اہمیت اور اس کے ممکنہ استعمال کے پیش نظر اس پر کام شروع کر دیا۔ برٹش نیوی نے جنگ عظیم اول کے آخر میں پہلا ایئر کرافٹ کیریئر HMS آرگس تیار کر لیا تھا۔ یہ ابتدائی ایئر کرافٹ کیریئر ایک بحری جہاز ہی کو کنورٹ کر کے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ڈیک یعنی رن وے کی لمبائی تقریباً 170 میٹر تھی اور اس پر 20 ایئر کرافٹس کو رکھنے کی گنجائش تھی۔ اسے جنگ میں استعمال کرنے کی نوبت تو نہ آ سکی کیونکہ اس کے باقاعدہ استعمال سے پہلے ہی جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جاپان اور امریکہ نے کیریئرز کی تیاری پر تیزی سے کام شروع کر دیا۔ مارچ 1922 میں امریکہ نے اپنا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر USS لینگلے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اسی سال کے آخر میں جاپان نے بھی اپنا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز ہوشو تیار کر کے سروس میں شامل کر دیا۔ ایئر کرافٹ کیریئر کا باقاعدہ استعمال جنگ عظیم دوم کے دوران شروع ہوا، جب جاپان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا کنٹرول حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے عزائم میں امریکہ بڑی رکاوٹ تھا۔ امریکہ کا بحری بیڑا بحر الکاہل کے ہوائی جزیروں کی پرل ہاربر بیس سے مسلسل جاپان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس صورتحال میں جاپان نے پہلے امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جاپان چونکہ ہوائی سے تقریباً 4000 میل کے فاصلے پر تھا، اتنے بڑے فاصلے سے فضائی حملہ کرنا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا امپیریل نیوی آف جاپان کے کمانڈر نے پرل ہاربر نیول بیس پر حملہ ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حملے کے حتمی فیصلے کے بعد جاپانی بحری بیڑے نے پرل ہاربر سے تقریباً 230 میل شمال میں ڈیرے ڈال دیے۔ جاپان کے بحری بیڑے میں 6 کیریئرز پر تقریباً 400 کے لگ بھگ لڑاکا طیارے لوڈ تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکی نیول بیس پر ایئر کرافٹ کیریئر سے سرپرائز فضائی حملہ کر دیا۔ جاپان کی انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق اس وقت پرل ہاربر میں امریکن نیوی کے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود تھے اور ان کا اصل ہدف بھی وہی تھے تاکہ امریکن نیوی کو کمزور کیا جا سکے۔ جاپان اپنے اس مقصد میں تو کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ خوش قسمتی سے اس روز پرل ہاربر پر موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کیریئرز کسی اور مشن پر روانہ کر دیے گئے تھے۔
खैर इस कार्रवाई के बाद अमेरिका भी जंग अज़ीम में कूद पड़ा और फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। इस हमले के बाद बहरुल काहल में होने वाली बैटल ऑफ मिडवे में जापान को अमेरिका के हाथों अपने 4 कैरियर्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। इस जंग में अमेरिका का एक कैरियर भी तबाह हुआ। जंग अज़ीम दोम के दौरान कुल 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तबाह हुए। अगर आप पर्ल हार्बर पर होने वाली कार्रवाई के बारे में ज़्यादा तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों शुरू में एयरक्राफ्ट कैरियर्स फ्यूल के तौर पर ऑयल ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका ने सबसे पहले जोहरी तवानाई से चलने वाले एयरक्राफ्ट तैयार किए। इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़े में शामिल तकरीबन सभी एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर्ड ही हैं। जंग अज़ीम दोम के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के बुनियादी डिज़ाइन में भी तब्दीलियाँ की गईं। मसलन इब्तदाई फ़्लाइट डेक बिल्कुल सीधे से तब्दील करके अब थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया ताकि लैंडिंग एरिया को टेक ऑफ एरिया से मुमताज़ किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एक ही वक्त में भी की जा सके। इसके बाद पायलट को जहाज़ लैंड करवाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम का भी इजाफा किया गया, जो पायलट को ये बताता है कि लैंड करते हुए उसकी अप्रोच दुरुस्त भी है या नहीं। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी बहरी बेड़े का सबसे बड़ा और कीमती असासा होता है, लिहाजा इसे जब भी किसी मिशन पर रवाना किया जाता है तो ये कभी भी समंदर में तन्हा सफ़र नहीं करता, बल्कि इसे सप्लाई शिप्स, बैटल शिप्स, क्रूज़र्स और सब मैरीन्स ने घेर रखा होता है। इस पूरी फार्मेशन को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन पर नज़र रखना और एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत करना और उसको सपोर्ट फराहम करना होता है। दोस्तों यकीनन आपके क्यूरियस माइंड में अब ये सवाल उभर रहा होगा कि एक एयरक्राफ्ट को ज़मीन पर रनवे से उड़ान भरने के लिए और ज़मीन पर लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की ज़रूरत होती है, और ये कैसे मुमकिन है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के सिर्फ 100 मीटर तक लंबे रनवे से एक इतना बड़ा जहाज़ उड़ जाए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर से तैयारे को टेक ऑफ करवाने यानी उड़ान भरवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर फ्लैट यानी सीधा होता है। इनमें लड़ाका तैयारों को टेक ऑफ करवाने के लिए एक सिस्टम नस्ब किया जाता है जिसे कैटापल्ट कहते हैं। कैटापल्ट का हरकत करने वाला हिस्सा डेक के ऊपर होता है, जबकि बाकी सारा मैकेनिज़्म डेक के नीचे पोशीदा होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तैयारे ने उड़ान भरनी हो वो मूव करता हुआ इस कैटापल्ट की जगह पर आता है। जब तैयारे का अगला पहिया अच्छी तरह इस कैटापल्ट के लॉक के अंदर फिक्स हो जाता है तो ये रनवे पर तैयारे को पूरी कुव्वत से खींचकर डेक के आखिरी सिरे तक ले जाता है और ये कैटापल्ट इसे पूरी कुव्वत से फ़ज़ा में उछाल देता है। इस तरह मुख्तसर वक्त में ही तैयारे को वो रफ्तार मिल जाती है जो उसको ज़मीन से टेक ऑफ करने के लिए एक लंबे रनवे से मिलती है और यूँ वो फ़ज़ा में बुलंद हो जाता है। दोस्तों कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तैयारों को टेक ऑफ करवाने के लिए डेक के अगले हिस्से को थोड़ी सी एलिवेशन दी जाती है, यानी वो हिस्सा उभरा हुआ होता है। इसका रनवे बिल्कुल सीधा होने की बजाय थोड़ा सा अमूदी होता है। इस एलिवेशन को स्की जंप भी कहा जाता है। जब तैयारा डेक को छोड़ता है तो वो सीधा आगे नहीं जाता, बल्कि आखिरी हिस्से से तैयारे को ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट यानी उछाल मिल जाता है, जिससे उसे फ़ज़ा में बुलंद होने के लिए दरकार हाइट फ़ौरन मिल जाती है और तैयारा स्टेबलाइज हो जाता है और फ़ज़ा में उड़ जाता है। इस तरीक़ा में तैयारा कैटापल्ट की बजाय मुकम्मल तौर पर अपने इंजन की ताकत के बलबूते पर ही उड़ान भरता है। दोस्तों ये तो हो गई टेक ऑफ करने की बात। अब देखते हैं कि इस मुख्तसर से डेक पर तैयारे लैंड कैसे करते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे से रनवे पर तैयारे को लैंड करवाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे अरेस्ट रिकवरी कहते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है कि कैरियर के डेक पर लैंडिंग साइड के इब्तदाई हिस्से में इंतहाई मजबूत वायर्स मतवाज़ी तौर पर एक दूसरे से कुछ फासले पर नस्ब की जाती हैं।
जब कोई त्यारा लैंडिंग के लिए अप्रोच करता है तो उसके पायलट को त्यारे की दुम के नीचे मौजूद एक हुक को इन अरेस्टिंग वायर्स में यानी रस्सों में से किसी एक के अंदर फिक्स करवाना होता है। जब ये हुक इन अरेस्टिंग वायर्स या रस्सों में से किसी एक में फंस जाती है तो अरेस्टिंग वायर जहाज़ की रफ्तार को इंतहाई बर्क रफ्तारी से कम कर देती है। यूं जहाज़ छोटी सी जगह पर भी लैंड करने के काबिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पायलट लैंडिंग के दौरान अगर किसी वजह से हुक को वायर में फिक्स सही तरह ना कर पाए तो वो उसी रफ्तार से वापस टेक ऑफ कर जाता है और घूम कर दोबारा लैंड करने के लिए एक दूसरी ट्राई लेता है। समंदर में तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक तेज़ रफ्तार तैयारे को लैंड करवाना दोस्तों एक मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए पायलट का इंतहाई माहिर और निडर होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आजकल मॉडर्न तैयारे ऐसे भी आ चुके हैं जिन्हें टेक ऑफ करने और लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल सीधे यानी अमूदी तौर पर भी टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये खसूसियात चंद एक मखसूस तैयारों या फिर हेलीकॉप्टर्स में ही होती हैं। ऐसे तैयारों में F-35 काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैयारों की कितनी गुंजाइश होती है। इसका इन्हिसार एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज़ पर होता है। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड पर 75 एयरक्राफ्ट्स को रखने की गुंजाइश है। इसकी लंबाई तकरीबन 337 मीटर है। दोस्तों, ये भी याद रहे कि कैरियर के डेक पर एक वक्त में सिर्फ चंद एक तैयारों को ही रखा जाता है, जबकि बाकी जहाज़ों को एक एलिवेटर के ज़रिए नीचे हैंगर में ले जाया जाता है। वहाँ उनकी रीफ्यूलिंग और जांच पड़ताल वगैरह की जाती है। USS गेराल्ड फोर्ड अपने अंदर 4500 अफराद को भी अकोमोडेट कर सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट का अमला, कैरियर का अमला और सपोर्ट स्टाफ वगैरह शामिल होता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का लाइफ स्पैन तकरीबन 50 साल होता है और इस दौरान इनकी ओवरहालिंग सिर्फ एक ही बार तकरीबन 20 साल के अरसे के बाद की जाती है और इसमें 3 से 5 साल का अरसा लग जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी उम्र पूरी करने के बाद ज़्यादातर ममालिक म्यूज़ियम वगैरह में तब्दील कर लेते हैं। इस वक्त अमेरिका में 5 ऐसे म्यूज़ियम मौजूद हैं। अमेरिकन नेवी ने 2006 में अपने कैरियर को खुद समंदर में डुबो दिया था ताकि इसे एक मसनूई रीफ में तब्दील किया जा सके। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर किस कदर कीमती असासा किसी भी मुल्क की नेवी का होता है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब तक के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड की तैयारी पर अमेरिकी नेवी के 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आई थी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 3 मज़ीद इन प्रोसेस भी हैं, जबकि इसके मुकाबले में चाइना के पास 3 कैरियर्स मौजूद हैं। चाइना ने हाल ही में अपना तीसरा कैरियर फौजियान बहरी बेड़े में शामिल किया है, जिसे मुकम्मल तौर पर चीन ही में तैयार किया गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकन बहरी बेड़े की मौजूदगी पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं। इसके अलावा वो इस खित्ते में अपना असर व रसूख भी बढ़ाना चाहता है। दफ़ाई मुबसरीन के मुताबिक 2030 के आखिर तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद 7 हो जाएगी। चीन के मुकाबले में भारत भी अपनी बहरी बेड़े में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत ने एक नया, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपने नेवल फ्लीट में शामिल किया है। इसके अलावा बरतानिया और इटली के पास 2-2, जबकि फ्रांस और रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। चंद एक ममालिक के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं। बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो इस वक्त तक तो पाकिस्तान नेवी के पास कोई भी कैरियर नहीं है। दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये है कि सेकंड हैंड कैरियर भी जो अपनी आधी लाइफ गुजार चुका हो, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 4 अरब डॉलर तक की कीमत का होता है, जो हमारे दफ़ाई बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लिहाजा पाकिस्तान नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं। दूसरी वजह इसकी दोस्तों ये भी है कि पाकिस्तान की साहली पट्टी महज 1046 किलोमीटर ही है, जबकि मिलिट्री ज़्यादातर लैंड बेस्ड है।
ہمارے زیادہ مسائل بھی لینڈ بیسڈ بارڈر کے ساتھ ہی ہیں۔ ان حالات میں پاکستان اگر ایئر کرافٹ کیریئر خرید بھی لیتا ہے تو وہ زیادہ تر ساحل پر ہی رہے گا، اور یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہرگز نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ پاکستان کو شاید فی الحال ایئر کرافٹ کیریئر کی کوئی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں۔ دوستو، اب آخر میں اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا ایئر کرافٹ کیریئر آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں جتنے کہ آج سے 70-80 برس پہلے تھے؟ کیا یہ آبسلیٹ تو نہیں ہو چکے؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے ہاں، کسی حد تک تو ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جب جدید میزائل سسٹم کی رینج اور ایکوریسی بہت ہی بہتر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک جس نے اگر کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا ہے تو وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو ایک خاص حد سے زیادہ اس ملک کے قریب نہیں لا سکتا، کیونکہ اس ملک کے میزائل کی رینج اس جگہ تک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایئر کرافٹ کیریئر کو ایک مقررہ فاصلے سے ہی یہ حملہ کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے کیریئر کی افادیت کسی حد تک کم تو ہو چکی ہے، خاص طور پر ان ممالک کے خلاف جن کی میزائل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے۔ پاکستان بھی اپنی ایئر کرافٹ کیریئر کی کمی کو اپنی میزائل صلاحیت سے ہی پوری کرنے کی پالیسی پر فی الحال گامزن نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوستو، آج کل کے دور میں ایک ملک کو ہزاروں میل دور دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے بھی جہاز بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ کمی بھی وہ میزائل سے پوری کر سکتا ہے۔ دوستو، ایئر کرافٹ کیریئرز کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ کن موضوعات کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔